हेलो एवरीवन, दिस इज मनदीप सिंह शेखावत एंड टुडे वी विल ट्राई टू डिज़ाइन गूगल कैलेंडर। गूगल कैलेंडर का हम सिस्टम डिज़ाइन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट आर द फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। दिस इज आवर यूट्यूब चैनल एम एस दीप सिंह on which you are watching the video. Do subscribe the video if you like the content. So let's move ahead with the functional requirements. So what are the functional requirements? What kind of functions we want to support while we are designing this calendar application? Number one requirement is schedule a meeting. Okay, so this is the basic meeting. While in a calendar you are able to schedule a meeting with other people. You can block basically the time that in this particular time I want to have a call, I want to have this particular chat. So you can block that calendar invite with that particular user या फिर list of users. It can be a single user or it can be a list of multiple users. Check availability of users. So while you are scheduling a meeting, before that if I can figure out if in that particular time if that person is available or not, that's a good functionality, right? So before posting a particular invite to a person, I want to know if that particular user is already blocked or if he's available. So these kind of scenarios, these kind of responses can be handled with the API whichever we create. Request RSVP. So basically we want a response from a user. So let's say I blocked a meeting invite with another person. So if I want to know if that person will be available in that time, so I can request a RSVP, I can request a response from that person that yes, I will be available. I have accepted the invite, so I will be available. Another thing is meeting reminders. Reminders का मतलब कि like I have a meeting tomorrow या फिर I have a meeting in next 30 minutes. So before 30 minutes I will get a notification that there is you have a particular meeting with this particular user. This is the agenda of the meeting. So all those details I can get a notification of that event or of that invite, so that I can prepare if I have to and do anything. If I am out, then I can go to my laptop to attend that meeting. Okay, so these are the functional requirements we want to support from our calendar application. Now let's move to non-functional requirements. अगर non-functional requirements की बात करें, our system should be available. System should be available means like if I am blocking an invite, I should be able to send that particular invite to users. It should not happen कि the system is not available. System is not available to create that invite, या फिर if I want to check availability of users, so I should be able to do that. Your system application which you are designing should be available. Eventual consistency, by which what we mean is it's fine if the database is updated in some time, right? So let's say I sent an invite to two users, user A and user B. Now it's possible that I have sent the invite. Now user A will receive the invite first and user B will receive the invite second. So it's not that you have to commit the transaction. Basically you don't want the transaction support. Okay, so eventual consistency is fine. We don't want strong consistency. If you can provide, then that's fine, but it's not a strong requirement, not a latency critical application. So the same example we discussed, right? Depending on, like let's say you have sent the invites to user A and user B. So it's fine if both the users don't receive the invite in the same time, or like in the minimum latency portal is fine if the invite is sent after 10 minutes, or let's say not 10 minutes, let's say 10 seconds or 13 seconds. So we are good with that. Durable storage, by which what we mean is, so let's say a particular meeting has expired. I want to see the meetings which I had last week, so I should be able to see that. It's not that it's not like the meetings which have expired you can delete them, या फिर it should not happen if there is any issue. Let's say your database was down, so you should have proper mechanisms in place so that you can back up that data. So your storage should be durable. Durability basic means like you don't have to lose the data, so your system should be durable enough to do that. Now let's move to capacity estimations. Capacity estimations की बात करें तो कुछ assumptions हमने लिए हैं, like what are the number of users. तो वो assumption हमने ले रखा है. I don't have the strong justification why these numbers are. These are just as per like let's say Google Calendar is used by many people. So let's say the number of users which we have are 100 million, and out of all these users 1/10 of the people are actually posting the invite, so it will be 10 million. And assuming a particular person create 5 posts in a day,
So we will have 50 million invites per day. So if you want to calculate the storage of one invite, let's say there was meeting content, something, user id, invitee list, all those details, the API response you are creating or the data you are storing in the actual DB, let's say it's 1 KB. Okay, so moving ahead, what will be the total storage? So you have total 50 million users per day, and 1 KB is required for the each of those transaction, each of those processing of that API जो भी हम data store कर रहे हैं उस particular operation के लिए to create that particular invite. So it will be 50 GB per day. So if you talk about like what will the total storage फॉर अ ईयर, इट विल बी 20 TB, 20 TB डेटा स्टोरेज हमें चाहिए, उतना सपोर्ट जो भी हम डेटाबेस चूज करते हैं। लाइक वाई डू वी कैलकुलेट दीज नंबर्स? जैसे हम TPS कैलकुलेट करते हैं, डेटाबेस स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स कैलकुलेट करते हैं, वाई डू वी डू दैट? द रीज़न इज टू टेक बेटर सिस्टम डिज़ाइन डिसीजंस। जो अब हम डिसीजन लेते हैं कि लाइक व्हाट काइंड ऑफ डेटाबेस आई वांट टू चूज, ठीक है, तो एक तो जैसे अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट आ गई कि व्हाट काइंड ऑफ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स वी वांट टू सपोर्ट, ठीक है, तो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आपको ये चाहिए, तो ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट जो आप देख रहे हो, तो इट्स लाइक योर सिस्टम शुड बी ऑलवेज अवेलेबल, इवेंचुअल कंसिस्टेंसी इज फाइन, ठीक है। जब आप कैपेसिटी एस्टिमेशंस की बात करते हो कि आपका शार्डिंग चाहिए नहीं चाहिए, पार्टीशनिंग करनी पड़ेगी या फिर नहीं करनी पड़ेगी, सो दोज काइंड ऑफ सपोर्ट और यू वांट और नॉट, यू कैन डिसाइड बेसिस these numbers and what kind of TPS you have. On that basis you can decide like what kind of what number of hosts you require. Can that request, like let's say only one user you have on your system, okay, so it can be supported by a single host, you don't need a load balancer or all those things. So these things help you to make better design decisions, and that's why we do capacity estimations along with our requirement gathering. Now let's move to high level design, how our system will look like if we go with these requirements, these functional requirements, these non-functional requirements, and this is the kind of capacity we want to support for our design. So let's discuss, let's like we will come back to this query patterns and like what kind of tables we want to create and why you are using this, but let's directly move to the component diagram first, where we will discuss how the different APIs will work, what are the different components we have, और हर component का function क्या है, कैसे वो काम कर रहा है, उसको हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। So starting from the application, let's say you have your calendar application installed your phone, it can be iOS phone, it can be Android application. So in both these like kind of phones or like any other kind of operating system, you have your calendar application installed, and these are the backend systems which we have created will support this calendar application queries. So the first requirement was to get like to create the meeting invite, right? So you have certain users, you want to block certain time, and for that time you want to send the invite to those users. So how will that particular operation work like? ठीक है, तो this is our API which will be used to create the invite, post meeting invite. The parameters which we have is user ID, like who one is creating, जैसे मैं मनदीप क्रिएट कर रहा हूँ msdeep14, ठीक है, तो वो यूजर ID है यहाँ पे अटेंडेड लिस्ट, किन यूजर्स को आप रिक्वेस्ट भेज रहे हो, स्टार्ट टाइम एंड एंड टाइम डिफाइंस लाइक व्हाट विल द ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ द मीटिंग, ठीक है, जैसे आप इस टाइम पे स्टार्ट करने वाले हो, यहाँ पे आपके एंड होने वाले हैं, तो वो ड्यूरेशन डिफाइन हो जाएगा with these two parameters, meeting content, like what is the agenda. So you can send like this is the subject and this is the all the details. एक ये भी हो सकता है कि आप जैसे Google Meet का लिंक डाल रहे हो कि इस Google Meet लिंक के ऊपर हम कनेक्ट करेंगे, बेसिकली we will have our video conference, ठीक है, so all those details can be part of meeting content. ये अपना लोड बैलेंसर है, लोड बैलेंसर हमें क्यों चाहिए, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, क्यों चाहिए हमें, हमने उस पर वीडियो बनाया है, बिकॉज इन द बैक एंड वी हैव लॉट ऑफ होस्ट्स. सो to like the API should hit all those hosts depending on like basically dividing the load between those hosts so that we can support that TPS. So if you talk about the Uber level of our service, we have two main services. जो माइक्रो सर्विसेज की बात करते हैं, वी हैव टू मेन सर्विसेज विच विल सपोर्ट आर यूज केसेस. फर्स्ट सर्विसेज सर्व्स मीटिंग सर्विस, सेकंड सर्विस इज क्रिएट मीटिंग सर्विस. सो हमने उस बेसिस पे डिवाइड कर दिया है, लाइक ऑन द यूज केस. One is like we have to create the meeting, so what kind of operations, what kind of APIs we want to provide for the create meeting. If you want to search for those meetings, so that is supported by a different service altogether. So
starting from the post meeting invite, your request will hit our create meeting components. Let's say we have these processors which we have created basis the APIs we have exposed. So create meeting request प्रोसेसर क्या करेगा, अपना जो DynamoDB टेबल है उसमें जाके वो सारी डिटेल्स अपडेट कर देगा कि ये यूजर आईडी है, ये अटेंडी लिस्ट है, स्टार्ट टाइम एंड टाइम मीटिंग कंटेंट ये है, ठीक है. ऑल दोज डिटेल्स आर अपडेटेड इनटू द DynamoDB एंड फॉर all the operations which are doing in the DynamoDB, जैसे आप कोई भी अपडेट ऑपरेशन भेज रहे हो on DynamoDB table, what you are doing is for each of these operations you are doing two things. एक तो ये, एक ये, ठीक है. पहला क्या कर रहे हो आप, यू आर सिंकिंग दैट डेटा विथ इलास्टिक सर्च. इलास्टिक सर्च में आप डेटा सिंक क्यों कर रहे हो, टू प्रोवाइड द सर्च फंक्शनैलिटी. अब क्या आप ये सर्च फंक्शनैलिटी इससे नहीं प्रोवाइड कर सकते, इससे भी प्रोवाइड कर सकते हो. पर अगर मेरे को सर्च फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करनी है ऑन ईच एंड एवरी एट्रीब्यूट विच इज प्रेजेंट इन आर टेबल, एंड इन फ्यूचर इट कुड बी पॉसिबल दैट वी आर एडिंग मोर एंड मोर एट्रीब्यूट्स. सो हाउ यू बेसिकली सर्च इन DynamoDB. अगर मैं आपको बेसिक डिज़ाइन बताऊँ DynamoDB का, हाउ यू सर्च इन DynamoDB. सो देयर कैन बी टू सिनेरियोज, आइदर यू सर्च इन द क्रिएटेड GSI, ठीक है, एंड नंबर वन इज यू सर्च विद द हेल्प ऑफ पार्टीशन की प्लस सॉर्ट की विच यू क्रिएटेड, ठीक है. These combination of this partition key and short key creates the primary key in DynamoDB. And another way could be creating of the GSI on the other attributes which are present in table. And at max you can create 5 GSIs, and for GSIs which you have created you have to pay extra, ठीक है. तो एक तो आपका DynamoDB स्टोरेज हो गया, अगर आपको GSI बनाने हैं you have to pay extra. So thinking in scalable way, I have assumed कि जैसे अपने सारे एट्रीब्यूट्स हो गए. तो इन फ्यूचर इफ यू वांट टू ऐड मोर एट्रीब्यूट्स, इफ यू हैव सिंक द डेटा विद इलास्टिक सर्च, यू कैन प्रोवाइड द सर्च कैपेबिलिटी ऑन ईच एंड एवरी एट्रीब्यूट विच इज प्रेजेंट इन योर टेबल टू मेक द क्वेरी फास्टर. एंड हाउ वी आर यूजिंग इट आई विल एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ द सेकंड API. बट फॉर नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड ऑपरेशन. सेकंड ऑपरेशन इज you are splitting the basically splitting that meeting invite into the attendee level. So let's say there were 3 attendees in that particular meeting invite. So MSDeep14 created an invite in which there were 3 users, user 1, user 2, user 3. For those, first I have synced the data with Elasticsearch, whatever I stored in the DynamoDB table, then I am sending the notification, ठीक है. आप उन सारे यूजर्स को क्या करोगे, नोटिफिकेशन भेजो कि भाई तुम्हारे लिए इनवाइट आया, इस पर्सन ने भेजा है, दिस इज द मीटिंग कंटेंट, डू यू वांट टू टेक एनी एक्शन, डू यू वांट टू एक्सेप्ट इट, डू यू वांट टू डिक्लाइन इट, डू यू वांट टू जस्ट नेग्लेक्ट इट. ठीक है, मेरे को कोई एक्शन नहीं लेना, मेरे पास ईमेल है, मैंने डायरेक्ट डिलीट कर दिया. तो what you are doing is to send those notification. How it will work is you are basically publishing that event to SNS, and this is consumed by the SQS which is binded to notification service, ठीक है. तो जो अपना SNS पे जो हमने टॉपिक पब्लिश किया, SNS टॉपिक पे द इवेंट विच वी पब्लिश इज कंज्यूम्ड बाय द SQS विच इज बाइंडेड टू नोटिफिकेशन सर्विस. अब नोटिफिकेशन सर्विस का ये काम रहेगा टू सेंड द मीटिंग इनवाइट टू ऑल द अटेंडीज. If you haven't gone through already our notification service design video, we did created a video, detailed video discussing how notification service could be designed. So let's say that design we discussed earlier, it has the pluggable architecture. So let's say we want to integrate our notification service into this calendar app. So we are using that same notification service here. It will consume the SQS event. Now that it will publish the notification to all the attendees. Now attendees can take any actions which is part of post RSVP. We will discuss in some time. एक काम तो आपका ये हो गया. इसके अलावा आप क्या कर रहे हो, इसके अलावा आप कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, update school table for each attendee. Okay, so you are taking 2 actions, right? One is like you created the meeting invite. Now what you have to do is you have to also update the schedule for each and every user which were part of attendee list. So for that what you are doing is आपने एक AWS lambda बना रखा है. AWS lambda, again there is a SQS queue binded to this lambda which is consuming the events which you are published to this particular SNS table. Now in schedule table what you are doing is you are updating the list of updating the meeting invites for those attendees, ठीक है.
इट कुड बी पॉसिबल कि वो पर्टिकुलर अटेंडी उस मीटिंग को एक्सेप्ट कर रहा है या फिर डिक्लाइन कर रहा है या फिर कुछ एक्शन नहीं ले रहा, पर एक एंट्री क्रिएट हो जाएगी जब आप पोस्ट RSVP करोगे, तो वो पर्टिकुलर एंटिटी वापस अपडेट हो जाएगी। जैसे उसने एक्सेप्ट कर लिया तो वापस अपडेट हम कर देंगे, बट फॉर नाउ एक एंट्री आप बना दे रहे हो कि हाँ देर इज वॉज इनवाइट जो इस यूजर को आया हुआ है। Moving on to our second API. So, in this post meeting invite, what we discussed earlier was like while we are discussing the functional requirement, जैसे आपका post meeting invite आप भेजते हो उससे पहले you want to know in that particular time if the list of the list of users I am sending invite to, they should be available in that time. I want कि there are maximum participation in the meeting I am creating, so I want to check the availability of all the users. How you can do that? By using this particular API get attendees availability. So you are sending user ID again me just for authentication purposes, who is calling this API, then the attendee list, like for which of the particular attendees I want to check their availability, start time and end time. This is just to validate, like check in which particular time you want to check the availability. What you can do is this is handled by our search meeting service. यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप इलास्टिक सर्च को क्वेरी कर रहे हो, जो डेटा आपने इस एपीआई में अपडेट किया था, ये डेटा जो अपडेट हुआ था इलास्टिक सर्च क्लस्टर में, यू कैन गेट दैट डेटा कि फॉर दिस पर्टिकुलर यूजर, लेट्स से यूजर 1, so for user 1 in time 9 p.m. to 10 p.m. is this user available in this time, so I can directly check that, and I can decide if I want to change the time of the meeting and like any action which I want to take. But this is the API functionality which is supported. Another thing is post RSVP. Like once I have received a notification, once I have received an email that there is an invite from MSDeep14 to, and like the user one, so user one wants to take any actions. Okay, so if user one want to accept that meeting, how he can do that? He will just click on the accept button, right? So how it will work in the back end? So user ID आपने भेजा, meeting ID आपने भेजा कि कौन सा meeting ID के लिए आप ये accept कर रहे हो, meeting response, it can be optional, like if you want to attach any kind of response to the acceptance you are sending, and then RSVP status, accept, decline, tentative. Okay, एक बार आपका ये काम हो जाता है तो पोस्ट RSVP प्रोसेसर क्या करेगा, सेम जो अपनी अब मीटिंग्स टेबल थी उसको जाके अपडेट कर देगा. अगेन यू आर अपडेटिंग दैट सेम इंफॉर्मेशन इन इलास्टिक सर्च एज वेल. अब ये हेल्प कैसे करेगा, तो जैसे आप मतलब मान लो आपका ये पर्टिकुलर यूज़र 1 है, ठीक है, आप इसको कुछ पर्टिकुलर मीटिंग्स आ रखी होगी, तो ही कैन टेक एनी दीज एक्शंस, एक्सेप्ट, डिक्लाइन. ठीक है, तो लेट्स से द यूज़र एक्सेप्टेड द, तो जैसे आपका सबसे पहले जब इनवाइट आता है उस टाइम पे क्या करते हो, आप एक यूज़र के लिए एंट्री बना देते हो कि इस यूज़र ने एक मीटिंग आईडी हमने क्रिएट करी, मीटिंग आईडी आई क्रिएटेड. ठीक है, meeting ID I created, a UID I created, and for this particular meeting ID I stored all the details, like who is the user who created this, who what are the attendee list, all those details. एक हमने एक दूसरी DB में हमने क्या किया, जिन यूजर्स को ये इनवाइट गया है वो कौन से यूजर्स हैं, उनके लिए हमने सबके लिए एंट्री बना दी कि कौन से यूजर्स का कौन सा टाइम ब्लॉक्ड है. अब यूजर जब एक्सेप्ट एक्शन लेता है, जब कोई यूज़र एक्सेप्ट एक्शन लेता है तो वी कैन अपडेट दैट. अगर कोई डिक्लाइन एक्शन लेता है तो वी शुड रिमूव दैट एंट्री फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टेबल. ठीक है, इसमें वो एंट्री रहेगी जब तक ये यूज़र डिलीट नहीं करता. बट इफ अ पर्टिकुलर पर्सन इज डिक्लाइनिंग ए मीटिंग इनवाइट, इट शुड बी रिमूव फ्रॉम दिस टेबल. ठीक है, अगर टेंटेटिव रहता है, अगेन फॉर बोथ द एक्सेप्ट एंड टेंटेटिव वी विल अपडेट द DynamoDB टेबल. बट with these two status, if the meeting is declined, then I will remove this entry from this table, and same should be reflected in this Elasticsearch cluster, so that when I try to fetch the availability of that user, it should include both the status. अगर accept रहता है तो accepted रहना चाहिए कि मैं decide कर पाऊँ, like if it is tentative तो आप हो सकता है कि उसने कोई मीटिंग एक्सेप्ट नहीं करी हो, तो अगर आप इनवाइट भेजते हो तो वो एक्सेप्ट हो जाए. ठीक है, डिक्लाइन अगर यूज़र ने कर दी है तो अगर मैं इलास्टिक सर्च से जाके चेक करता हूँ उस यूज़र का पर्टिकुलर स्टेटस, आई शुड बी एबल टू सी कि वो यूज़र उस टाइम में फ्री है, उस टाइम में अवेलेबल है. सो जब भी आप इन एक्शंस के साथ, जो आपकी पोस्ट RSVP API है, अगर एक्सेप्ट और टेंटेटिव एक्शन रहता है, यू आर जस्ट अपडेटिंग द DB, बट इफ द एक्शन इज डिक्लाइन देन यू आर रिमूविंग दैट एंट्री फ्रॉम द DynamoDB फॉर दैट पर्टिकुलर यूज़र. ठीक है, तो ये हो गई अपनी बात APIs की. फाइनल API जैसे मेरे को खुद का कैलेंडर देखना है, ठीक है, कि अगर
let's say I open the calendar application, I want to check what or meetings I have today, so how can I do that? तो मैंने अपना यूज़र आईडी बताया, स्टार्ट टाइम एंड टाइम बताया, जैसे मेरे को आज का पूरे दिन का देखना है, फिर मेरे को एक वीक का देखना है, फॉर दैट particular week, what I am doing is I am fetching all that information from our Elasticsearch cluster. अब यार देखो, कभी अगर ऐसा हुआ, ठीक है, हमने ऐसा स्ट्रक्चर किया है क्वेरी पैटर्न अपना कि आप इलास्टिकसर्च से सारा डेटा निकाल पा रहे हो। अब if any scenario, if any kind of scenario you are not able to fetch more data from Elasticsearch cluster, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे आपको मीटिंग आईडी यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है, मीटिंग आईडी आपको एक बार मिल जाती है तो उससे आप डायरेक्टली क्वेरी कर सकते हो अमेजोन डायनेमो डीबी से। दैट विल बी फास्टर, क्योंकि हम ये पार्ट, मतलब मीटिंग आईडी जो है ये आपका पार्ट रहेगा पार्टीशन की और सॉर्ट की के अंदर, तो आपका ये प्राइमरी की के अंदर रहेगा, तो आप इजीली उसको क्वेरी कर पाओगे। नाउ देयर आर सर्टेन थिंग्स विच यू स्किप्ड अर्लियर, जैसे यहाँ पे कि आप स्कीमा कौन सा रखने चाहते हो। तो जो भी आप स्कीमा रखोगे इट विल डिपेंड ऑन द क्वेरी पैटर्न्स विच यू वांट टू सपोर्ट ऑन टॉप ऑफ योर डेटाबेस, ठीक है। तो एक तो आपका हो गया लाइक यू वांट टू गेट ऑल द मीटिंग्स फॉर ए पर्टिकुलर यूजर इन दैट पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प, ठीक है। ये मैं खुद यूजर अपने लिए भी देख सकूंगा या फिर मैं जिनको इनवाइट भेज रहा हूँ उनके लिए भी देख सकता हूँ, which is our second point, that we want to get availability for the list of users in a given timestamp. Now I can also check what's the status of their meeting. If I want to check, like this was the meeting I created last week, so I want to check the status, who all accepted this meeting, who all declined this meeting, so I can get all those details using like this is the API which this is the query pattern which basically we want to support, that I should be able to fetch the status कि किस यूज़र ने एक्सेप्ट किया है, किस यूज़र ने डिक्लाइन किया है। तो हमने यहाँ पे ऊबर लेवल पे दो टेबल्स बनाई है, वन इज़ मीटिंग्स टेबल एंड वन इज़ शेड्यूल टेबल। ये थोड़ा सा लो लेवल डिज़ाइन में जा रहा है, पर और इतना मैंने वो मतलब एम्फसाइज इन पे किया नहीं है, अपना मेन वीडियो हाई लेवल डिज़ाइन का है। बट लेट्स क्विकली गो थ्रू द टू टेबल्स विच यू क्रिएटेड, ठीक है। तो देर आर टू टेबल्स, वन इज मीटिंग्स टेबल, अनदर वन इज शेड्यूल टेबल। इन मीटिंग्स टेबल यू हैव पार्टीशन की एज मीटिंग आईडी विच इज़ यूआईडी विच इज़ क्रिएटेड बाय योर सिस्टम, देन योर सॉर्ट की विच इज़ यूजर आईडी, किसने ये क्रिएट किया, देन दीज ऑल आर द डिटेल्स, ठीक है। अब anything which you want to support, जैसे हमने Elasticsearch already बना दिया है, but if you don't want to create the Elasticsearch and you want to support all these query patterns via DynamoDB only, so you can create GSI on top of this table to support your query. Schedule table में क्या आपका partition की है schedule ID, ठीक है, एक ये UID है, sort की है आपका user ID plus meeting ID and all those details which you have as part of this table, ठीक है। Why Elasticsearch we already discussed that in details, आप के साथ ये PDF मैं शेयर कर दूंगा ऑन GitHub as well as I will, like if I post this post on LinkedIn, you will also you can also download from there, ठीक है। तो आपको एक GitHub के अंदर लिंक मिल जाएगा where you can download this particular PDF. Now let's moving to another points which are critical for this design, ठीक है। So there are some points we should consider, या फिर आपके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपने ये डिसीजन कैसे लिया, ठीक है। तो the first point is there any special handling required for duplicate meetings, ठीक है। तो it will be like kind of the requirements which you should close as part of functional requirements, पर scenario कैसा है कि लेट्स से आपने इस API को कॉल किया, इस API को कॉल किया आपने गेट अटेंडीज अवेलेबिलिटी। सो इफ अ यूजर इज ऑलरेडी ब्लॉक्ड इन दैट पर्टिकुलर टाइम, फर्स्ट ऑफ ऑल इज like can you create another event invite, can you send a duplicate invite to that user। तो जनरली ऐसा होता है कि आप भेज सकते हो, एंड वी हैव अज्यूम द सेम कि अगर कोई पर्सन ब्लॉक्ड भी है तो आप इनवाइट भेज सकते हो, एंड इट्स ऑन द यूजर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी कि वो इस इनवाइट का क्या करता है, उसको एक्सेप्ट करता है या फिर पुराने वाले को डिक्लाइन करके इसको वापस एक्सेप्ट करता है। सो ऑल दोज थिंग्स कैन बी डिपेंडेंट टू यूजर जो आपको, जिसको आप इनवाइट भेज रहे हो, ठीक है। सो लाइक वी डोंट रिक्वायर एनी स्पेशल हैंडलिंग इन आर डिजाइन टू सपोर्ट दिस। मूविंग टू द सेकेंड पॉइंट इज पोस्ट मीटिंग इनवाइट API कंप्लीट सिंक फ्लो, ठीक है। तो हमने कहा था कि लेटेंसी इतना क्रिटिकल कंपोनेंट अपना नहीं है, पर यार ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जैसे मैंने कैलेंडर एप्लीकेशन ओपन किया, आई हैव क्रिएटेड इनवाइट, लाइक आई हैव सेंट अ इनवाइट टू लिस्ट ऑफ यूजर्स, नाउ आई डोंट वांट टू वेट फॉर एवर कि वो ऐसे घूमे ही जा रहा है कि आपका इनवाइट प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फॉर दैट डू यू वांट दैट कि आपकी जो API है वो कंप्लीट सिंक वर्कफ्लो हो। तो API में आपका क्या क्या हो रहा है, आप जाके क्रिएट मीटिंग प्रोसेसर कुछ मीटिंग आईडी बना रहा होगा, वो DynamoDB में डेटा अपडेट करता है, फिर आपका लैम्डा दो एक्शन लेता है, उसको Elasticsearch में अपडेट करता है, देन वो इवेंट भेजता है सारे अटेंडीज़ को,
तो आप क्या कर सकते हो, जैसे आप एक मीटिंग आईडी बना देते हो और आपका डेटा अमेजोन डायनेमोडीबी में अपडेट हो गया है, वंस दैट इज डन यू कैन सेंड एन एक्नॉलेजमेंट टू यूजर, ठीक है। और दिस ऑल प्रोसेसिंग की आप इलास्टिक सर्च में डेटा सिंक कर रहे हो एंड यू आर सेंडिंग द नोटिफिकेशन टू यूजर, दिस कैन कैरी ऑन इन बैकग्राउंड। सो इससे आपकी हाइब्रिड अप्रोच हो गई कि आपकी पूरी की पूरी एपीआई सिंक नहीं है, पर अगर आप यूजर पर्सपेक्टिव में देखोगे तो यूजर को एक्नॉलेजमेंट मिल गया है कि the meeting invite has been created, now you can like carry on in backend कि आपको उन यूजर्स को नोटिफिकेशन भेजना है या फिर आपको डेटा को अपडेट करना है, डेटा स्टोर कहीं और बैकअप में करना है, कुछ लाइक एनी एक्शन यू वांट टू टेक यू कैन टेक दैट। मूविंग टू द थर्ड पॉइंट, व्हाई डीडीबी एंड व्हाई नॉट एनी रिलेशनल डीबी। तो यार एक बेसिक क्वेश्चन रहता है कि आप जब भी डेटाबेस चूज करते हो, the basic question is, do you want to choose the relational db या फिर do you want to choose no relational non relational db, नो SQL या फिर SQL, कौन सा आपको यूज करना है। तो फर्स्ट पॉइंट जो कंसिडरेशन रहेगा, डू वी वांट ट्रांजैक्शन सपोर्ट, क्या हमें ऐसी प्रॉपर्टीज की रिक्वायरमेंट, एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी, डू वी नीड दोज प्रॉपर्टीज सपोर्ट, क्या हमें ट्रांजैक्शनल सपोर्ट चाहिए, हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो वी हैव ए स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन कि हमें नो सीक्वल की तरह मूव करना चाहिए। अगर सेकंड पॉइंट की तरफ हम मूव करें, आर देन स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स इन द डेटा विच यू हैव, ठीक है। तो हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है नहीं, अगर रिलेशंस है भी तो हम मतलब नो सीक्वल में वो काम कर सकते हैं, ठीक है, पर इतनी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स अपनी है नहीं। प्रायोरिटी ऑफ अवेलेबिलिटी और स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी, अगेन वी वांट, जो अपना मेन डिज़ाइन गोल है, वी वांट टू बी मोर अवेलेबल एंड कंसिस्टेंसी अपना चलता है, मतलब इवेंचुअल कंसिस्टेंसी वी आर फाइन विद। तो कंसिडरिंग ऑल दिस पॉइंट्स, नो सीक्वल सीम्स अ बेटर फिट और डायनामोडीबी हम यूज़ कर रहे हैं टू सपोर्ट आर यूज केस। Moving to the fourth point, API get attendees availability can be called in background before post meeting invite API। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि जब आपकी पोस्ट मीटिंग इनवाइट एपीआई कॉल होती है तो गेट अटेंडीज अवेलेबिलिटी बैकग्राउंड में कॉल होगी, ताकि you can get the list of users who are available in that time, like what is the basic status कि वो available है, blocked है, like whatever the status is, you can call this get attendees availability in API in backend in background, so that you get that status of those users and accordingly you can decide to send that invite to those users, या फिर आपको time change करना है, like anything you want to do you can do that। handling of recurring invite, तो यार जब भी आप कैलेंडर एप्लीकेशन बनाओगे, ये एक बेसिक क्वेश्चन आपका आएगा कि आपने एक बार इनवाइट भेज दिया, ठीक है, अब लेट्स से यू वांट टू क्रिएट ए रिकरिंग इवेंट, तो कैसे होगा। जैसे मैं आपकी एक मीटिंग है पर्टिकुलर जो आपने सेटअप कर रखी है, वो हर 12 बजे, मतलब हफ्ते में 5 दिन जो भी आपके वर्किंग डेज है, रोज़ 12 बजे आपकी इन्वोक होनी चाहिए या फिर नोटिफिकेशन आपको आना चाहिए कि 12 बजे ये मीटिंग है। तो वो कैसे काम करेगा, सबसे पहले तो लाइक द डीबी विच वी क्रिएटेड, वी हैव द इनवाइट्स पर यूज़र एंड पर इनवाइट आईडी, तो वो आसानी से हैंडल हो जाएगा। अब उसको नोटिफिकेशन कैसे भेजेंगे वो हम डिस्कस करते हैं थोड़े से टाइम में, ठीक है। वो नीचे आएगा आपका रिमाइंडर सर्विस के अंदर कि आपको उस यूज़र को याद दिलाना है कि हाँ भाई तुम्हारी मीटिंग है अभी 12 बजे, ठीक है। तो वो हम नीचे चलते हैं, पर अपने डेटाबेस में वो एंट्री ऑलरेडी मेंटेन्ड है कि इस यूज़र के लिए इस पर्टिकुलर टाइम में ये मीटिंग इनवाइट है, तो द टाइम शुड बी ब्लॉक्ड फॉर दैट यूज़र इन दैट टाइम। Going to the sixth point, what if the invitee list is too long, will sync API still perform well। तो जो अटेंडी लिस्ट है, आप क्या करते हो, जो भी आपकी अटेंडी लिस्ट है, फॉर ऑल दोज अटेंडीज यू आर अपडेटिंग द डायनेमोडीबी, ठीक है। यहाँ पे 2 टेबल्स आपने बना रखे हैं, उन 2 टेबल्स में आप क्या कर रहे हो, वो डेटा स्टोर कर रहे हो और उनको अपडेट कर रहे हो, ठीक है। तो वो आपकी काम होगा कैसे, वो काम आपका कैसे होगा, इफ द अटेंडी लिस्ट इज टू लॉन्ग इट कैन टेक टाइम, ठीक है। आप 2 डायनेमोडीबी टेबल अपडेट कर रहे हो, सो इट कैन टेक मोर टाइम, सो हाउ कैन यू सपोर्ट दैट। अगर आपको लगता है कि वो अटेंडी लिस्ट काफ़ी ज़्यादा लंबी जा रही है, यू कैन थिंक ऑफ ए हाइब्रिड अप्रोच कि अगर लिस्ट ऑफ यूज़र्स 20 तक है तो मैं एक साथ प्रोसेस करूँगा, जैसे मैंने डायनेमोडीबी टेबल अपडेट किया फिर मैं एक्नॉलेजमेंट भेज दूंगा। अगर ये काफ़ी ज़्यादा हो रहा है कि जैसे मान लो 100 तक चला गया, तो वॉट यू वॉन्ट टू डू इज, इंस्टेड ऑफ सेविंग दैट डेटा टू डायनेमोडीबी, आप बैच में स्टोर कर सकते हो, पर आपको मीटिंग आईडीज भी बनानी होगी, फिर आप स्टोर कर रहे हो, तो अगर उसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा लिस्ट लंबी है, तो once the meeting ID is created you can send a response to the यूज़र जिसने मीटिंग क्रिएट करी है, और इन बैकएंड आप जो डायनेमोडीबी सेव ऑपरेशन या फिर जो बाकी
फर्दर प्रोसेसिंग है वो कैरी ऑन कर सकते हो। तो इट विल डिपेंड कि अगर कुछ बोटलनेक्स आपको दिखते हैं एंड ऑन लॉट टेस्टिंग यू कैन फिगर आउट दिस, ठीक है। जैसे आपका डिज़ाइन इम्प्लीमेंट हो रहा है एंड इफ़ यू थिंक दैट इट इज़ ब्लॉकिंग, इट इज़ टेकिंग टू मच टाइम, ठीक है, तो आप वो डिसीजन ले सकते हो। पर आर डिज़ाइन विल बी ओपन एंडेड फ्रॉम स्टार्ट, ताकि अगर आपको ये चेंज करना पड़े तो वो आप आसानी से कर पाओ। अब हम बात करते हैं रिमाइंडर सर्विस की। तो जैसे ये काम आएगा, एक तो कि आपको आपने जो मीटिंग शेड्यूल करी आपके पास रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है, उस पर्टिकुलर टाइम से, लेट्स से बिफोर 30 मिनट्स। इट विल ऑल्सो भी हेल्पफुल इन केस ऑफ रिकरिंग इन्वाइट्स कि आप वो अपडेट आ रही है कि आपकी मीटिंग है 30 मिनट के अंदर। सो व्हाट यू कैन डू इज, आप कर क्या सकते हो, जो आपका डिज़ाइन है, ठीक है, उसमें एक एपीआई एक्सपोज कर दो। तो हम क्या ये नोटिफिकेशन सर्विस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डाल रहे कि वो चेक करेगा अपने सिस्टम के कि हाँ भाई किसकी मीटिंग है, उसको जाके नोटिफिकेशन भेजो। हम क्या कर रहे हैं, हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहे हैं अपने क्लाइंट एप्लीकेशन के ऊपर, ठीक है। जो कैलेंडर एप्लीकेशन है, कैलेंडर एप्लीकेशन क्या करेगा, ये अपनी इसको कॉल करेगा, ठीक है। यहाँ पे गेट रिमाइंडर्स मान लो कोई एपीआई है फॉर ए यूजर आईडी, ठीक है, और इसमें टाइम स्टैम्प है, ठीक है। सो इफ़ यू वांट टू गेट द रिमाइंडर्स, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने इलास्टिक सर्च में देखूंगा कि हाँ मेरे लिए कौन सी मीटिंग्स है अगले 30 मिनट में, या फिर अगले 1 घंटे में, अगले 2 घंटे में, ठीक है। वंस आई हैव दैट इन्फॉर्मेशन, आई दैट रेस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी ड्रिवन बाई क्लाइंट की मेरे को अब नोटिफिकेशन दिखाना है। एप्लीकेशन में आपको नोटिफिकेशन आप इजीली दिखा सकते हो, तो वो आप काम कर सकते हो गेट रिमाइंडर्स एपीआईज की हेल्पफुल में, कि हर बैकग्राउंड में 15 मिनट में वो एपीआई इन्वोक होती है, हर 30 मिनट में वो इन्वोक होती है। मतलब जैसे भी आपको डेटा फेच करना है, अगर आप 2 घंटे का डेटा फेच कर रहे हो तो वो हर 1 घंटे में इन्वोक हो सकते हैं, ठीक है। उसी हिसाब से यू कैन डिसाइड द ड्यूरेशन, पर ये बैकग्राउंड में इन्वोक होगी और आपका डेटा लेके आ जाएगी। और जैसे आपका 30 मिनट से पहले होता है कि हाँ भैया ये मीटिंग आने वाली है, 12 बजे मीटिंग है, तो 11:30 बजे मेरे को नोटिफिकेशन आ जाएगा कि देर इज दिस पर्टिकुलर मीटिंग विद दिस लिस्ट ऑफ यूजर्स एंड दिस इज द मीटिंग एजेंडा, ठीक है। आ, इसमें एक बेसिक चीज़ है कि आप जो ये टाइम डिसाइड करते हो कि मैं इस एपीआई को बार बार कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, दिस एपीआई इज इन्वोक्ड इन बैकग्राउंड, तो हर 15 मिनट का जैसे हमने एग्जांपल लिया, सो यू वांट टू रेंडमाइज दैट टाइम, ठीक है। हर बार 15 मिनट मत रखो, उसको +-2 कर दो, +-4 कर दो, कि हर कई बार 11 हो रहा है, कई बार 15 की जगह 19 हो रहा है, ठीक है। Why that is important is the reason is to avoid the thundering herd problem. Let's say there was some issue in the system, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं हम, ये आपका सिस्टम है, लेट्स से दिस इज योर सिस्टम, और आपकी जो गेट रिमाइंडर्स एपीआई कॉल हो रही है इस सिस्टम को हर 15 मिनट में कॉल हो रही है, या आपने इस पर वो लगा रखी है, ठीक है, ये है अपनी घड़ी, ठीक है। तो हर मिनट में हर 15 मिनट में ये कॉल होती है। मान लो कि आपका कोई क्रॉन जॉब चल रहा है आपके कैलेंडर एप्लीकेशन में, हर 15 मिनट में ये आप इसके सिस्टम को हिट करती है। लेट्स से देयर वाज सम इशू इन दिस सिस्टम, ठीक है, कुछ इस सिस्टम में इशू हो गया, तो ये सारी रिक्वेस्ट फेल हो गई। अब वापस क्या होगा, ये वापस कॉल करेगी, ठीक है, एक साथ कॉल होगी, क्योंकि इनका टाइम कॉल जो टाइम है, जो इन्वोकेशन टाइम है वो सेम है। इसको रेंडमाइज, और होगा क्या कि जैसे आप मतलब कुछ इशू है इसमें, ये आप पाने की कोशिश करेगा, पर क्योंकि ये रिट्राई हो रही है तो ये रिक्वेस्ट और ज़्यादा डबल हो जाएगी, ठीक है। तो आपका सिस्टम पूरा कोलैप्स कर सकता है, जिसको आप बोलते हो थंडरिंग हर्ड प्रॉब्लम। तो इसको अवॉइड करने के लिए जो एक बेसिक काम, सबसे बेसिक काम जो आप कर सकते हो इज़ द रैंडमाइजेशन ऑफ द कॉल्स, ठीक है। जो आपकी एपीआई है वो रेगुलर इंटरवल्स में कॉल हो रही है, तो इस इंटरवल को आप रेंडमाइज कर दो। दिस विल हेल्प टू मच ऑफ द एक्सटेंट टू अवॉइड दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो this is all like about our calendar application which we discussed today. If you have any feedback, do share in the comment section. कोई भी आपका feedback, कोई भी suggestion, if you think there is particular bottleneck in this design, do let me know. Do let's discuss in the comment section. We can further try to improve the solution. I will also post this solution on the GitHub, so you can create a pull request if you think there is any other better solution. हम मिलते हैं अपने next video में, तब तक के लिए stay safe, टाटा, bye bye.